Okay, good morning everyone. Good morning, ma'am. क्या हुआ, बहुत नींद आ रही है आज? Good morning, ma'am. पहली क्लास आपकी मेरे साथ ही होती है क्या मॉर्निंग में? No, ma'am, economics में होती है लेकिन आज नहीं थी. But it feels like you all are sleepy. मैम ने सुबह सुबह बताया कि आज क्लास नहीं है, फिर हम इसलिए फिर से सो गए थे। Okay. Ma'am, excuse me. हाँ जी. Ma'am, sorry for the text. It wasn't supposed to be there in that group. That's okay, Thank you, that's ma'am. okay. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट. ओके, लेट्स डिस्कस इट. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लकी होती, ठंड में कम से कम आपको कॉलेज तो नहीं आना पड़ रहा है. आई कंसिडर ऑल माई सेल्फ ऑल्सो लकी कि घर पे बैठ के ही क्लास लेनी पड़ रही है. नो, व्हाट डू यू थिंक? यस मैम। Yes, ma'am. तो कम से कम बेड पे चाय पीते पीते एटलीस्ट यू कैन अटेंड द क्लास. Okay. Can anybody tell me? Shall we start the discussion? Start writing the points. आप बताओ प्रोडक्ट के बारे में. tangible, Okay. Tangible and intangible, I would say. Mixture Not of tangible and intangible attributes. okay. A bundle of attributes, right? Next. Satisfy consumers' needs. Something that satisfy customers' needs. और बताओ. Final हाँ जी. outcome. Final outcome. Like after everything, the final outcome is our product. Okay. Final outcome. और बताओ. something valuable, Okay. Something that can be sold to satisfy customers' need. Something that Has can monetary value. changed, right? Yes. Ma'am, has monetary value. Has every value, not just monetary value,
बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स में वैसे तो आ जाता है वो, बट बंडल ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं. ओके, और बताओ. It is the key element of the marketing program. Yes, okay. It is the key element of marketing mix कह सकते हैं. और anything else? Ma'am, it can be transferred from one location to another. No. Transferable. नहीं. No. Ma'am, it can be a service and an item. Okay, हम लिख देते हैं कि it can be what all it can be. Okay, it can be goods, it can be services, it can be, और बताओ. It can be anything of value. It can be. Anything of value. अरे वो तो हमने पढ़ लिया, बंडल ऑफ वैल्यूज पढ़ लिया, सब पढ़ लिया. गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, और क्या हो सकता है? अरे आई मीन प्लेसेस भी तो मार्केट होते हैं, आइडियाज मार्केट होते हैं, प्रोसेस, पीपल, और information, properties, right? Experiences, methods, और या formulas भी कह सकते हैं हम, right? ये सब चीजें किस में आती हैं? प्रोडक्ट में. ये एग्जॉस्टिव लिस्ट. सो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? Product is a bundle of tangible or intangible attributes that can be offered to the market for exchange for the satisfaction of needs and wants of the target market. It includes goods, services, places, ideas, process, people, information, properties, experience, methods, formulas, etc. And it is the key element of the marketing mix. Is that clear? Ma'am, Yes, ma'am. excuse me. Yes, ma'am. Anji? Ma'am, there's this guy Shubham Garg who got disconnected and he has joined from another device. Can you please let him in? Okay, let me see. Product की definition clear है? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I am giving here the definition by none other than Philip Kotler, who is the father of marketing. Not marketing, but yeah, he's the Philip Kotler's की definitions जो हैं, that is Philip. ये Philip Kotler ने क्या बोला है? A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, यूज और कंजम्पशन. मतलब उसने एक्सचेंज को ब्रेक कर दिया है कि सबसे पहले कोई चीज आपकी अटेंशन ग्रैब करती है, आप उसको एक्वायर करते हो एंड देन अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करते हो. तो वो एक्सचेंज का प्रोसेस इन्होंने ब्रेक करके बता दिया. So it includes all the physical objects, services, personalities, place, organizations and ideas. Okay. अब देखो इन्होंने attention, there is a difference. अब इसने क्यों ये हाईलाइट करना जरूरी है? क्योंकि मार्केट में देखो, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर?
Ma'am, customer is the one who buy any good or product, but the consumer is the one who use that product. Yes, कस्टमर इज इक्वल टू बायर, जो खरीदता है प्रोडक्ट को, ठीक Yes, है। ma'am. कंज्यूमर इज इक्वल टू यूजर, ठीक है, जो एक्चुअली कंज्यूम करता है उस प्रोडक्ट को। तो देर जरूरी नहीं है कस्टमर इज नॉट, जरूरी नहीं है कि कस्टमर विल ऑलवेज बी द बायर, विल ऑलवेज बी द Yes, ma'am. A customer can be considered. Uh, uh, he may be he may be a wholesaler, retailer, and the consumer is end the end buyer of that product. हाँ, जरूरी नहीं है। मान लो मेरे फादर ने मेरे लिए कोई चीज खरीदी और कंज्यूम मैं कर रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे फादर कोई होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, राइट। आपका पॉइंट भी ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि एंड में भी, एंड ऑफ द साइकिल में भी देयर कैन बी डिफरेंस बिटवीन द परचेजर एंड द बायर। मैंने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा, गिफ्ट मैंने खरीदा है, बट कंज्यूमर कौन है? द वन हु हैज बीन गिफ्टेड विद दैट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। कस्टमर खरीदता है प्रोडक्ट को, अटेंशन, एक्विजिशन एंड यूज और कंजम्पशन कौन करता है? एक दूसरा बंदा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम कुछ Yes, बच्चे ma'am. मैम वेट कर रहे हैं लॉबी में शायद। अब कितना इनको बोला था 9:45 पे एंटर करो, तो एंटर नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अब देखो, एक प्रोडक्ट की लेयर्स होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। हमें फिजिकल अपीयरेंस में वो एक ही लगता है, बट उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिससे वो कंसिस्ट होता है। ओके, लेट मी शो यू। किसी को पता है ये लेयर्स के बारे में? मैम कौन सी लेयर? ओके, यू डोंट नो अबाउट इट। आई एम सेइंग कि प्रोडक्ट की बड़ी सारी लेयर्स होती हैं। जब प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है तो वो लेयर्स में क्रिएट किया जाता है। कैन यू सी द डायग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जितने भी लोग अब 9:45 के बाद एंटर किया है ना, मैं अलाउ कर रही हूँ एंटर करना, बट आई हैव स्ट्रिक्टली रिटन द मैसेज दैट 9:45 के बाद नहीं होगा, एंड इट इज सो मच डिस्टर्बिंग टू लेट यू इन। देन अगर नहीं करो तो यू कीप ऑन सेंडिंग द मैसेज ऑन द ग्रुप, और दूसरे को बोलोगे कि बोल दे मैम को। अरे अगर आपको इतना पढ़ना होता है तो आपको टाइम से आया करो क्लास के अंदर। 10 बज गए, 15 मिनट वी आर डिस्कसिंग। Okay, so these are the 5 dimensions of the product. Okay, सबसे पहली डायमेंशन देखो इसके अंदर कौन सी है? देखो कौन एंटर कर रहा है अभी। दिखाती हूँ मैं, ये just a second, let me write on the group. ये
ओके, सो सबसे पहले आता है कोर प्रोडक्ट। ठीक है, आप सबसे अंदर वाली लेयर देख रहे हो जो पिंक है, ये आता है कोर बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट का क्या मतलब है कि सबसे बेसिक बेनिफिट जिसके लिए प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले वो वैल्यू डाली जाए जो जिसके लिए उसको क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि ये आंसर करता है व्हाट इज द बायर रियली बाइंग। ओके, ठीक है। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप फोन क्यों खरीद रहे हो? वाई आर यू बाइंग द फोन? क्योंकि मतलब मैम वो डिपेंड करता है कि एक लोगों पे कि मान लो अगर मैं फोन खरीद रहा हूँ तो उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लाइक उसमें स्टोरेज ज्यादा होनी चाहिए, रैम ज्यादा, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोई कोई डिजाइन के लिए भी बाय करता है उसे। बच्चे बेसिक बेनिफिट बताओ कि आप क्यों खरीदते हो फोन को। अच्छा मैम वो मैम किसी को मैम कॉल अपने करने के लिए। कन्वीनियंस के लिए। मैम कॉलिंग के लिए, इंटरनेट सर्फ करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। वॉशिंग मशीन भी है कन्वीनियंस के लिए, तो सर्दियों के कपड़े भी हैं। किस कन्वीनियंस के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन, सबसे बेसिक बेनिफिट कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर पाओ। ये पता नहीं कौन सा बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, सर लिख रहा है, अक्षित दुरेजा। ओके, सो फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, कोट क्यों खरीद रहे हैं? ताकि ठंड से बच सके। तो the basic benefit, the basic, very basic value the product is adding, and that is mobile phone के लिए वो वॉशिंग मशीन के लिए वो वॉशिंग क्लोथ्स है, मोबाइल फोन के लिए वो टॉकिंग है, कम्युनिकेशन है, एंड सर्दियों के कपड़ों के लिए वार्मथ है। तो दिस इज द वेरी बेसिक बेनिफिट दैट अ प्रोडक्ट कैन प्रोवाइड, राइट। दूसरा क्या है? टैंजिबल प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट। दूसरा लेवल क्या है? जेनरिक प्रोडक्ट, दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे अब उस वैल्यू को, दैट इज कम्युनिकेशन को, हम एक फिजिकल शेप देते हैं, एक्चुअल शेप देते हैं। इसको हम, इस लेयर को हम टैंजिबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जहां पे फिजिकल या फॉर्मल शेप में एक प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, this represents all the physical characteristics of the product like quality, features, उसके design, उसका brand, उसकी packaging, उसकी labeling, all of that. ठीक है, तो कोट या जो मोबाइल फोन है, जो उसका आउटर है, जो उसका डिजाइनिंग है, उसकी पैकेजिंग है, उसका डब्बा है, उसको कैसे रखना है, वो सारा इस स्टेज पे डेवलप किया जाता है। उसके फीचर्स, उसके डिजाइनिंग, एवरीथिंग, राइट। मतलब उसको फिजिकल शेप दी जाती है, द बेसिक फिजिकल शेप दी जाती है उसको, उस प्रोडक्ट को, so that it can be tangibilized, so that it can be given a physical shape. उसके बाद थर्ड लेयर आती है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? बेसिक बेनिफिट से कुछ एक्स्ट्रा अगर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट में, उसको हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज द separate features that a product, specific features that a buyer looks into the product. Okay, the normal expectations जो बायर की होती है उस प्रोडक्ट से, वो जैसे एक फर्नीचर से मेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी बताओ? क्या बेसिक? सबसे, देखो, द थर्ड लेयर ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक बायर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपने मोबाइल खरीदा, आपकी सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन उससे क्या होगी? लुक्स में अच्छा होना चाहिए और कॉलिंग फीचर अच्छे से काम फीचर्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। मैम बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं किसी और से कांटेक्ट कर सकूं, कॉल कर सकूं। वो तो कोर बेनिफिट में आ गया ना, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दैट टैंजिबल, आपकी उस फोन से क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ड्यूरेबल रहे। आपने कोई 40 या 50 हजार का प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप ये सबसे फर्नीचर खरीदा है मान लो आपने, आपसे सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन उसके अंदर क्या होगी कि वो लंबा कंफर्टेबल और ड्यूरेबल हो। कंफर्टेबल हो। एग्जैक्टली, इट शुड बी कंफर्टेबल टू सिट, इट शुड बी यू नो ड्यूरेबल ऑल्सो। कोट खरीदा है, इट शुड बी वार्म। आपकी ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से। अब एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, वो डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड क्या चल रहा है। पहले लोग होटल रूम लेते थे तो होटल रूम में उनको लगता था, देखो होटल रूम का कोर बेनिफिट है छत प्रोवाइड करना, वो आपको कर रहा है प्रोवाइड। कहीं बाहर गए, आपका घर नहीं है तो होटल में आप रुक सकते हो, वो उसका कोर बेनिफिट है। टैंजिबल प्रोडक्ट क्या है, उसको मकान की शेप दी गई है, रूम की शेप दी गई है, दीवारें खड़ी की गई हैं, दैट इज टैंजिबल। उसमें फीचर्स, ब्रांड नेम ऐड किया गया है कि ये XYZ होटल है एंड ऑल ऑफ दैट, वो टैंजिबलाइज किया गया है, उस वैल्यू को, उस कोर बेनिफिट को टैंजिबलाइज किया गया है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, आज की डेट में अगर आप एक होटल रूम में जाते हो तो क्या आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो उस होटल रूम से? इट शुड हैव टीवी, इट शुड हैव AC, it should have kettles, right? Minimum Wi-Fi. basic आप वाईफाई एक्सपेक्ट करते हो, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन, बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन। अगर ये नहीं होंगी तो आप कहोगे, आप शॉक हो जाओगे उस टाइम पे कि अरे ये नहीं है। फोन खरीदते हो, सबसे बेसिक फीचर है उसका कि कैमरा, आप कहोगे कैमरा नहीं है इस फोन में, दिस इज शॉकिंग। क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन आपकी डेवलप हो चुकी है कि ये अब तो आता ही है हर प्रोडक्ट में। कार है विदाउट एयर बैग्स, आप कहोगे ये क्या, आजकल कोई कार नहीं आती, ये मुझे ऐड क्यों करना पड़ रहा है अपनी तरफ से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। आने वाले टाइम में क्या पता और भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो बेसिक, जो हम होटल रूम से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दें कि ये भी प्रोवाइड करेगा, क्या पता। जैसे हमारे लिए टॉवल्स वगैरह रखे जाते हैं, सोप्स वगैरह रखे जाते हैं, तो क्या पता मास्क वगैरह भी रखे जाएं आने वाले टाइम में, सैनिटाइजर्स भी रखे जाएं, बेसिक चीजें होटल रूम में प्रोवाइड की जाए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? हमारी एक्सपेक्टेशन कोरोना के बाद चेंज हो गई है ना, कि अरे सैनिटाइजर नहीं है इस रेस्टोरेंट में, ये कैसा रेस्टोरेंट है? अगर आप अपना सैनिटाइजर भूल भी आए हो घर पे, तो वहां पे तो होगा ही होगा, यस मैम। राइट? तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, इट इज द सेट ऑफ फीचर्स दैट प्रोडक्ट कैरीज ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर, कि बायर की एक्सपेक्टेशन है ये। ओके, नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द फोर्थ लेयर इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। It refers to those features of the product which exceeds the customer's expectation, जो उसकी एक्सपेक्टेशन को क्या कर जाता है, एक्सीड। एक्सीड कर। जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? यस मैम। ओके, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करता है। बताओ एक होटल रूम में ऐसी क्या चीज होगी जो आपको डिलाइट करेगी, अरे ये भी है, बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन के अलावा? सैनिटेशन क्लेanलीनेस, साफ सफाई। King क्लीनलीनेस size तो bed. बेसिक एक्सपेक्टेशन में नहीं आता, आपको क्या कोई रूम गंदा थोड़ी देगा वहां पे? King size bed. मैम एयर कंडीशन. एयर कंडीशन तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है आपकी। मैम सोफा एयर, सेट। कोई ऐसा होटल रूम होगा जो बंद होगा और जो आपको आज की डेट में AC ना दे? कॉम्प्लीमेंट्री मील. मैम अच्छा बालकनी भी हो। मैम जैसे वो पार्किंग का दे सकता है। पार्किंग भी देता ही है हर वो होटल, वो वैसे एक्सपेक्टेशन है। पार्किंग। आपकी गाड़ियां दूर थोड़ी खड़े करके आओगे, वो बेसिक में आता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आता है वो।
मैम एक अच्छा सा बालकनी व्यू। बच्चे, ट्राई टू पुट इट इन अ नाइस वे। आप डिलाइटेड कब फील करोगे जब आपने उस बालकनी के लिए पे नहीं किया, लेकिन फिर भी होटल वालों ने आपको Some sort of offer and खाना discounts. मैम खाना कॉम्प्लीमेंट्री मील देना, मैम वो तो आपको कहा तो था मैंने। प्राइस में प्रीमियम का रूम देना, या और भी अपर रूम अपग्रेड कहते हैं ना, अपग्रेड कर दिया हमको, सेम प्राइस में ज्यादा वैल्यू देना आपको, तो वो आपके लिए डिलाइट होता है। ये होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड मतलब कैसे आप कस्टमर को वो डिलाइट दे पाओगे। सब होटल रूम देते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सेम प्राइस में, वेरी गुड ब्रेकफास्ट बिल्कुल सेम प्राइस में। मैम Get और my वो भी point? तो होता है ना मैम, वो वारंटी होती है और फिर वो फ्री में रिपेयर कर जाते हैं, अंडर वारंटी जो कोई बिल्कुल होता है। बिल्कुल, the very extra features that you don't expect from the product but you get due to the, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो, लेकिन फिर भी आपको दिया गया, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। समझ में आया? अब यस एक्सपेक्टेड यस प्रोडक्ट में तो आपने एक्सपेक्ट किया था ना, तो आपको मिला तो आपको खुशी नहीं होगी। अब मैं बोलूं देखो मैम इस होटल रूम में टीवी भी दे रहे हैं, एसी भी दे रहे हैं, तो मैं कहूंगी अरे ये तो सब दे रहे हैं, वाई यू आर, मतलब आप उसमें क्या, आप में क्या डिफरेंट चीज है। बट यही अगर वो मुझे कुछ चीज एक्स्ट्रा दे, बालकनी व्यू दे, स्विमिंग पूल व्यू दे, यूज करने के लिए क्लब फैसिलिटीज मुझे दे दे, मेरा रूम अपग्रेड कर दे, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे दे, तो दैट विल बी अ डिलाइट फॉर मी, राइट? Yes, ma'am. Okay, so this is augmented product, and the last layer of the product is potential product. It refers to all the unexpected changes that product is capable of undergoing. Attributes, features, styles जो फ्यूचर में प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करना, ठीक है? ट्रिकी कैसे अंडरस्टैंड करना? देखो आपका फोन जो है, सबसे पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है कि आपका फोन फ्यूचर में क्या से क्या बन सकता है। उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं। आपका फोन रेगुलर अपडेट्स मांगता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यस मैम। यानी कि वो सिर्फ जो आज आपने खरीदा है वो उसके केपेबल नहीं है, बट वो चेंजेस को अडेप्ट करने के भी केपेबल है, राइट? जो सॉफ्टवेयर आपने आज उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं वो सिर्फ उन्हीं को लेने में कैपेबल नहीं है, बल्कि वो और भी जो चीजें आप उसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो वो उसके अंदर इंस्टॉल हो सकती है। लैपटॉप भी इसी तरीके से है। मेरा लैपटॉप फ्रेंडली है नहीं है, किस तरीके से है, दैट डिपेंड्स मेरे लैपटॉप की कंपेटेबिलिटी। यस ओके, आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी, कल उस प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ गए, तो वो क्या है? पोटेंशियल प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, जरूरी नहीं है उसकी आज की वैल्यू पे, बट उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या, उस पे भी खरीदते हो नहीं? तो ये पोटेंशियल प्रोडक्ट है, अंडरगोइंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है इनमें। स्मार्टफोन्स आपने जब खरीदना स्टार्ट किया लोगों ने, बिलीविंग दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू दिस प्रोडक्ट। सारे जो चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में वो इसी की वजह से आ रहे हैं, फ्यूचर इन्हीं का ही है। कहते हैं ना हम, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दीज प्रोडक्ट्स ओनली। यस मैम। तो जितने भी पोटेंशियल चेंजेस ब्रांड नेम के तौर पे, हाँ जी, हाँ, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स में आ सकता है बिल्कुल। जिन फोन में 5G, अब मेरे को अपना फोन एक बार ही चेंज करना पड़ा था बिकॉज इट इज नॉट कंपेटेबल विद 5G 4G नेटवर्क। तो
अगेन देयर इज वन मोर थिंग, ब्रांड के तौर पे भी हो सकता है। मान लो मैंने आज एक ब्रांड खरीदा जो कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, ब्रांड ने इतनी तरक्की की कि कल को मेरे को उसकी ओनरशिप में प्राउड फील हो रहा है कि ओके आई हैव दिस प्रोडक्ट बिकॉज वो इतना पॉपुलर हो गया। मान लो मैंने एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा और कुछ टाइम बाद मैं देख रही हूँ एप्पल हैज बिकम सो पॉपुलर, उसने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, बट जब मैंने उसको खरीदा था तो वो बेसिक था, तो वो ब्रांड नेम पॉपुलर हो गया, पब्लिसाइज हो गया। नाउ एवरीवन वांट्स टू ओन इट, बाय इट, होता है ना? Yes, ma'am. So that refers to potential product, that is future में जो benefits आपको product देने वाला है, not only in the present. Okay? Yes, ma'am. फाइव लेयर्स क्लियर हैं आपको प्रोडक्ट की? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? यस मैम क्लियर है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोडक्ट। जब आपके पास प्रोडक्ट की डेफिनेशन आए तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं डिफाइन करना है, आपको ये पांचों लेयर्स को डिफाइन करना है। ओके, बट मैम जेनरिक एक और बार एक्सप्लेन करिएगा ना। हाँ जी, जेनरिक प्रोडक्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जेनरिक प्रोडक्ट बच्चे रेफर्स टू, आपने देखो कोड बेनिफिट में देखा कि मुझे वार्मथ चाहिए। वार्मथ क्या आपको एयर में नहीं मिलेगी ना, उसको टेंजिबलाइज करना पड़ेगा ना आपको, कोट की शेप देनी पड़ेगी। कोट की शेप कैसे होती है? हम एक बाजू डालते हैं, दूसरी डालते हैं ना कपड़ों को। वो क्या है? कन्वीनियंस ही तो है ना ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को, दूध है, वो टेट्रा पैक्स क्यों दिए गए हैं? ताकि वो आराम से उसमें से निकाला जा सके और पिया जा सके। टेट्रा पैक बहुत कन्वीनियंट होता है ना। तो टैंजिबल शेप देना उस वैल्यू को कंज्यूम करने के लिए, टैंजिबल फीचर्स देना कि वो बेसिक प्रोडक्ट डेवलप करना जो क्या कहते हैं, जिससे कंजम्पशन उस वैल्यू को पैक किया जा सके, दैट इज इट। कोलगेट है, वो आपको उस ट्यूब में क्यों दी जाती है? जेनरिक प्रोडक्ट, फिजिकल शेप देना उन चीजों को, उस वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहले उसका बेसिक टेक्सचर देना, देन उसकी पैकिंग इस तरीके से देना, देन सेकेंड लेयर ऑफ पैकेजिंग भी होती है, राइट? तो वो सब उस वैल्यू को, वार्मथ, कोट को एक डिजाइन करना कि आप पहन सको उसको एंड इट लुक्स गुड आल्सो। सो टैंजिबलाइज करना किसी भी चीज को, उसको एक फिजिकल शेप देना, दैट इज जेनरिक, दैट इज जेनरिक प्रोडक्ट, टैंजिबल प्रोडक्ट। ओके, यस मैम, क्लियर हो गया। सर्विसेज, अब डॉक्टर जब तक अपना वो बेड, क्लिनिक, डेंटल वाली सारी चीजें नहीं लगाएगा, वो सर्विसेज कैसे देगा? वो भी तो टेंजिबलाइज ही कर रहा है ना। रेस्टोरेंट जब तक चेयर्स वगैरह नहीं लगाएगा तब तक कैसे सर्विसेज देगा? टेंजिबलाइज कर रहा है। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, बट एक चीज ध्यान रखना, एक तो जरूरी नहीं है पांचों लेयर्स आप तब डिफाइन करो जब 2-3 नंबर की डेफिनेशन आई हो। ऑफ कोर्स उसमें तो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन जो आप दोगे दैट इज सफिशिएंट, बट जब आपके पास पूरा बड़ा डिफाइन करने के लिए आए तो आप ये सारी लेयर्स साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल्स। ओके, then second, this dimensions of product is different from product mix that we are going to talk about tomorrow. ठीक है, product mix refers to all the decisions that you take with respect to the product, which involves branding, labeling, packaging, जो खुद में ही बड़े बड़े decisions हैं. But here we are talking about product layers, उसकी dimension, कि whether we are talking about basic product, augmented product, potential product, and so on. Okay? Yes, ma'am. Okay. So I'm Okay, ma'am. sending this notes on the group, right, for today, and we will discuss the product mix. We'll start discussing the product mix tomorrow. Okay? Okay, ma'am. All right.
Okay, ma'am.